Next phylum will be phylum Hemichordata. Next phylum होगा phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata के जो members होते हैं, these members were considered under the phylum Chordata previously. पहले क्या था, इस फाइलम को कॉर्डेटा के अंदर रख दिया, वहीं स्टडी करते थे. बट नाउ क्लियरली दिस फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज प्लेस्ड अंडर नॉन कॉर्डेट. व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज कॉर्डेट? बिकॉज एनिमल ऑफ दिस फाइलम हैव a notochord like structure called stomochord. ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 फर्स्ट पैरा में मिलेगा. मॉड्यूल में आप देखोगे तो पेज नंबर 29 और आप इसमें देखोगे फर्स्ट पॉइंट और 9 पॉइंट. ये जो एनिमल्स थे इनको पहले कॉर्डेटा में रखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ notochord like structure. But that structure was not actually notochord, that was stomochord. We will study later. Animals are fossorial. Fossorial means they live in burrow. They are marine. Marine होते हैं, सी में रहते हैं. सी से निकलकर किनारों पर जो सैंड है उसमें बरो बनाकर भी रहते हैं. That's why they are fossorial. Here it is an animal belong to the phylum Hemichordata. This phylum consists of a small group of worm-like animal. Worm-like animals होते हैं, soft होते हैं, brittle होते हैं and consist of organ system level of organization. Symmetry is bilateral. Bilateral symmetry means animal can be divided into two equal parts by only one plane passing through the central axis. So this type of symmetry is known as bilateral symmetry. These animals are triploblastic means having 3 germ layers. कौन कौन सी germ layer होंगी? One is ectoderm, other one is enoderm and third one is mesoderm. These animals are coelomate having true coelom. True coelom is of two types. One is cygocoelom and other one is anterocoelom. याद कीजिए, साइजोसीलोम डेवलप बाय स्प्लिटिंग इन मेसोडर्म एंड एंटेरोसीलोम इट डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस. हियर anterocoelom present. So this anterocoelom developed by the fusion of gut pouches. Anterocoelom. Body is brittle, soft, worm-like, and it is divided into number 1 proboscis and number 2 collar and number 3 trunk. So body is divided into 3 parts. One is proboscis, the anterior part. The anterior part is what? Proboscis. Then a collar and the remaining part, posterior part called trunk. Digestive system is complete type. What is the meaning of complete type digestive system? It is having mouth and anus both. Mouth is present, anus is present. So mouth and anus both openings are present, then the digestive system is complete type. Respiration takes place through pharyngeal gill slit. Pharyngeal gill slits, pharynx, mouth
open behind into the pharynx, and pharynx, it is having pores, slits, or you can say aperture. These structure, pharyngeal gill slit, help in respiration. The same feature also found in the phylum Chordata. So this feature is similar to the chordate feature. It is very important point, and this question is asked in the medical exam. Circulatory system, it is open type, blood is colorless without pigment, amoeboid corpuscles are present, no RBC. Heart is present on the dorsal side. So dorsal side पर there is heart. Blood vessel present है, blood vessel dorsal side पर present है, dorsal side पर present है dorsal blood vessel, and ventral side पर present होगी कौन सी? Ventral blood vessel. This is the point. Notochord like structure found in the buccal cavity. मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट में इसी के बारे में कि buccal cavity it is having a notochord like structure. This structure is known as stomochord. So notochord like structure resemble with notochord, which is known as actually what? Stomochord. That's why hemichordate also known as stomochordate. This structure resemble with notochord, but actually not notochord. Why? Why it is not notochord? Because notochord is mesodermal in origin, and this structure is what? It is the outgrowth of gut. Gut की outgrowth है. Gut or digestive system, it is endodermal in origin. So this structure is endodermal, while notochord is mesodermal. We can say that it is not true notochord. True notochord is not there, it is absent. Post-anal tail. Post-anal tail is what? एनस के पीछे से टेल निकलती है. एनस के पीछे से टेल निकलती है, which is known as post-anal tail. Post-anal tail, it is a feature of phylum Chordata. So here it is absent. Chordate feature है, वो यहां present नहीं है. Post-anal tail is absent. Excretion takes place by single glomerulus. Glomerulus present in this proboscis part. So here in the proboscis there is single glomerulus, also known as, this structure is what? This structure is proboscis gland, also known as glomerulus. Now ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? दिस प्रोबोसिस ग्लैंड इट कलेक्ट द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड. उसने क्या किया? एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट किया, एंड देन देयर इज अ पोर. This pore is known as proboscis pore. तो एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी फ्लूइड से कलेक्ट करने के बाद इस प्रोबोसिस पोर के थ्रू आउट, एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज व्हाट? इट इज अमोनिया. ये क्या होगा? अमोनिया. Central nervous system, it is just like non-chordate, consists of what? Nerve ring and nerve cord. Brain is present in the form of nerve ring. Reproduction, sexual reproduction is found in the member of phylum Hemichordata. Sexes are separate, means they are unisexual. You can say they are dioecious. वो कैसे होते हैं? Dioecious है. Fertilization is
external means taking place in water and development is indirect. Indirect का मतलब क्या होता है? Larva stays present or absent? Larva present and the name of the larva is Tornaria larva. Examples: one is Balanoglossus, which is also known as tongueworm or acorn worm. Other example is Saccoglossus, उसको भी बोलते हैं टंगवर्म. Hemichordata, it is the connecting link between non-chordata and chordata, as it shows some feature of chordates also, as there is pharyngeal gill slit, so which is chordate feature. That's why hemichordates are considered as connecting link between non-chordate and chordate. Now revision. Habit: all members are marine, found in seawater. They are fossorial, seawater से निकलकर कहाँ आए? सैंड में, और वहां बिल बनाकर भी रहते हैं. Level of organization is organ system level. Now revise the phylum Hemichordata. So very first, habitat. These members are found in seawater, marine, and also they are fossorial, mean seawater से निकलकर कहाँ आएंगे? सैंड में, और वहां बिल बनाकर रहते हैं. नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल. सिमेट्री, बोलिए सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलैटरल. जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बोलिए कौन कौन से नेम होंगे? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप, माउथ एनस बोथ प्रेजेंट. रेस्पिरेशन बाय गिल्स और pharyngeal gill slits, gills or pharyngeal gill slit. Circulatory system, it is open type. Excretory system, excretion takes place by proboscis gland or glomerulus. Sexes are separate, unisexual होते हैं. Fertilization is external, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो बोली लार्वा कौन सा? टॉर्नेरिया लार्वा. एग्जाम्पल्स बैलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. तो ये क्या था? फाइलम हेमिकॉर्डेटा. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. बिगिनर बॉक्स नंबर 10. द मोड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन इन हेमिकॉर्डेट. हेमिकॉर्डेट में ट्रू सीलोम होती है, और ट्रू सीलोम में भी मैंने आपको बताया था कि वो 2 तरह से डेवलप होती है, एक साइजोसीलोम और एक दूसरी एंटीरोसीलोम. इनमें कौन सी होती है? एंटीरोसीलोम. इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. सो इट इज एंटीरोसीलस कंडीशन. स्यूडोसीलस नहीं है, साइजोसीलस नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक इन Herdmania, no. Amphioxus, no. Balanoglossus, tongueworm, yes, it belongs to the phylum Hemichordata. Proboscis gland helps in. Proboscis gland or glomerulus, it helps in what? Excretion. In Balanoglossus, respiration is through body surface, no. Gills, yes. Gills or pharyngeal gill slit. Trachea, no. Ctenidia, no. Which of the following character is incorrect? Incorrect for hemichordate. Fertilization external, right. Development is direct, no. Indirect. याद कीजिए, larva, Tornaria larva. Circulation is open type, yes, it is correct. Body is worm like, right. तो wrong कौन सा हुआ? Development is direct. Now
यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है नॉन कॉर्डेट फाइला। आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी हमने नॉन कॉर्डेट फाइला पढ़े हुए हैं उन सबको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आपको घर पे ही एक चार्ट पेपर लेना है। चार्ट पेपर पर मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप पॉइंट लिखकर और आप कंपेयर करते जाइए। ये आपके लिए होमवर्क है और आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। पूरे नॉन कॉर्डेट फाइला आपके बिल्कुल सामने होंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और फर्स्ट कॉलम में आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कैरेक्टर्स। फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टर्स और उसके बाद फिर आप लिखेंगे फाइलम के नाम। आप लिखेंगे फर्स्ट फाइलम कौन सा, पॉरीफेरा। फिर इसके बाद आफ्टर पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ऐसे आप टेबल बनाएंगे। फिर आपने जैसे पहला फीचर लिया, फर्स्ट फीचर है हैबिट एंड हैबिटेट। आपको क्या करना है, हर फाइलम का आपको हैबिट और हैबिटेट बताना है। फाइलम पॉरीफेरा, तो आप क्या करेंगे, फाइलम पॉरीफेरा में बोलेंगे कि दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन, फ्यू फ्रेश वाटर लाइक स्पॉन्जिला, सेसाइल, सॉलिटरी, कॉलोनियल। ये पॉइंट किसके लिए हो गया, ये पॉइंट हो गया पॉरीफेरा के लिए। सीलेंट्रेटा में दे आर मोस्टली मैरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, सॉलिटरी, कॉलोनियल। टीनोफोरा में क्या लिखेंगे आप, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ओनली इन सी वाटर। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप बताएंगे कैसे मेंबर होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो होते हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, फ्यू फ्रेश लिविंग, सॉरी फ्यू कैसे फ्री लिविंग लाइक प्लेनेरिया। ऐसे ही एस्केहेल्मिन्थीज में पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। एनिलिडा मैरीन है, फ्रेश वाटर है एंड और फ्री लिविंग है और पैरासाइट भी है ना। पैरासाइट आप बता सकते हैं, लीच। आर्थ्रोपोडा, ये कैसे होते हैं, ये भी हर तरह के हैबिटेट में है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे हैबिट एंड हैबिटेट के पॉइंट आपको सब हर फाइलम के लिए लिखना है। इसमें आप अपने मॉड्यूल की एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो। फिर आपको लिखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर फाइलम के लिए। सिमेट्री, पॉरीफेरा में है तो मोस्टली कैसे होंगे, वो मोस्टली सिमेट्रिक, फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिक लाइक साइकॉन, ल्यूकोसोलिनिया। ऐसे जर्म लेयर, तो आप क्या बताएंगे, पॉरीफेरा में अगर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि जर्म लेयर कहां से स्टार्ट करते हैं हम, सीलेंट्रेटा। तो यहां क्या लिखेंगे आप, डिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा में क्या लिखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, और यहां से क्या लिखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब इन सब में क्या आता जाएगा, यही ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ले लिया सीलोम का। तो यहां ये सारे मेंबर कैसे होते हैं, यहां तक ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। फिर अगर आप एस्केहेल्मिन्थीज की बात कीजिए तो कैसे होंगे, स्यूडोसीलोमेट। एनिलिडा से लेकर लास्ट तक कैसे होते हैं ये होते हैं सीलोमेट। आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान यहां पर कौन सा आ जाएगा, बोलिए, सेल एग्रीगेट। सीलेंट्रेटा में कौन सा बॉडी प्लान आ जाएगा,
यहां पर ब्लाइंड सैक, टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक, प्लेटीहेलमिन्थीज में ब्लाइंड सैक, और फिर इसके आगे एस्केहेलमिन्थीज से लेकर यहां बोलिए क्या आ जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ले लिया कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप पॉरीफेरा में क्या बताएंगे कि डाइजेशन कहां होता है, डाइजेशन जो होता है वो होता है किसमें, कॉलर सेल में, कॉलर सेल में। कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, आप क्या बोलेंगे, यहां कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर। फिर आप बताएंगे सीलन ट्रेटा में, तो सीलन ट्रेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, इनकम्प्लीट। क्या यहां पर आप क्या बोलेंगे कि इट इज इनकम्प्लीट। और क्या बताएंगे, फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा सेलुलर। बिल्कुल यही पॉइंट, जो पॉइंट सीलन ट्रेटा में डाइजेशन का, वही पॉइंट टीनोफोरा में भी आएगा, फर्स्ट एक्स्ट्रा एंड देन इंट्रा सेलुलर। प्लेटीहेलमिन्थीज में, प्लेटीहेलमिन्थीज में क्या बोलेंगे कि यहां पर जो डाइजेशन होगा ये कहां पर हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। तो कैसा हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर होगा तो फिर वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। हालांकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज्यादा डेवलप होता नहीं है। टेप बर्म में तो बॉडी सरफेस से ही डाइजेस्टिव सब्सटेंस है वो वहीं से एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं, क्योंकि वो तो कहां, एलिमेंट्री कैनाल में। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि यहां टीनोफोरा में कैसा, ब्लाइंड सैक, यहां पर प्लेटीहेलमिन्थीज में ब्लाइंड सैक, और यहां से एस्केहेलमिन्थीज, यहां पर क्या आ गई, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। तो कहां पर डाइजेशन चल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में ही चल रहा है। एनीलिडा में डाइजेशन के लिए अब क्या आ गई है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी डेवलप हो गई। तो डाइजेशन कैसा चल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये पॉइंट अब आगे तक आप बोल दोगे, कहां से, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा से लेके लास्ट तक। फिर आपने बोल दिया रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पॉरीफेरा, सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, यहां तक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। एनीलिडा में क्या लिखेंगे, बाय मॉइस्ट स्किन। आर्थ्रोपोडा में आपको बताया गया बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, लाइक बुक लंग्स हैं, बुक गिल्स हैं, ट्रैकिया है, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ। ऐसे ही मोलस्का में आपको बताया गया गिल है, टीनिडियम है। इकाइनोडर्मेटा में तो आप बता सकते हैं क्या, डर्मल ब्रैंकाई। हेमिकॉर्डेटा में अभी हमने पढ़ा था, हेमिकॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट है, तो गिल्स और फेरेंजियल गिल स्लिट। सो ये पॉइंट क्या था, रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर तो ये नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट इन सीलन ट्रेटा एंड ऑल्सो टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज। बताइए एनीलिडा में कैसा, ओपन या क्लोज। तो एनीलिडा में कैसा होता है, इट इज क्लोज, है ना, क्लोज टाइप। आर्थ्रोपोडा में कैसा, ओपन टाइप। तो ऐसे ही आप मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, एक्सक्रीशन के लिए क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो एक्सक्रीशन के लिए आप बताएंगे पॉरीफेरा, सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा, यहां तक तो वही डिफ्यूजन और कैसे, थ्रू बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी वेस्ट आप बताएंगे, अमोनिया है। आगे प्लेटीहेलमिन्थीज है तो बोलेंगे फ्लैम सेल, एस्केहेलमिन्थीज है तो रेनिड सेल। ऐसे आपको पॉइंट वहां पर फाइंड आउट करके लिखना है। नर्वस सिस्टम याद रखिए, पॉरीफेरा में क्या लिखेंगे कि नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, नर्व सेल एब्सेंट होती है कहां, पॉरीफेरा में। अच्छा, सीलन ट्रेटा में बताएंगे ना नर्व नेट, टीनोफोरा में भी नर्व नेट। प्लेटीहेलमिन्थीज में पता ही है आपको, लेडर लाइक है, उसके आगे से आप वही नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन का पॉइंट आप बताएंगे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें या एसेक्सुअल है। किसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है, तो दोनों बताइए आप।
सेक्स यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? जैसे पॉरीफेरा में कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल हैं। सीलेंट्रेटा में बाइसेक्सुअल भी हैं एंड यूनिसेक्सुअल भी हैं। उसके आगे के सब आपके पास हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्टिलाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सेल्फ और क्रॉस मेंशन किया है तो वो भी आप बताइए। डेवलपमेंट आपको बताना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। लार्वा, अगर कोई लार्वा है उसमें दिया गया है, आपको बताया गया है, तो आप लार्वा का नाम मेंशन करिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको हर फाइलम का एक एक तो बताना है। जैसे पॉरीफेरा मैंने कहा, आप बता दो कैनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल। सीलेंट्रेटा है, बता दो नीडोब्लास्ट नीडोसाइट। टीनोफोरा है, 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फ्लैम सेल्स, फ्लैट बॉडी। एस्के हेल्मिन्थीज है, स्यूडोसीलोम है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है। बॉडी वॉल का पॉइंट आप बता सकते हो, वहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, सर्कुलर मसल नहीं है। एनिलिडा में बता दो प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया, है ना। अच्छा, फिर आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड अपेंडिसेस। मोलस्का में आप बता सकते हो मेंटल प्रेजेंट है। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी बॉडी होती है ना, स्पाइनी बॉडी प्रेजेंट है, स्पाइनी स्किन है। हेमिकॉर्डेटा में बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अच्छा, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स आप केवल कौन से लिखोगे? केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आप मेंशन करोगे, और उसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों। जैसे पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में आपने लिखा स्पॉन्जिला है, तो आप लिखोगे आगे क्या? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, कोई इसका अगर कॉमन नेम है। आपने लिखा यूप्लेक्टिला, आप लिखोगे वीनस फ्लावर बास्केट, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। तो ऐसे करके आप क्या करोगे? पूरा का पूरा एक चार्ट बनाओगे, जिससे कि आपको सारे पॉइंट, और सारे पॉइंट आपके पास हैं एनसीईआरटी में मॉड्यूल में प्रेजेंट हैं। आप उनको वहां से फाइंड आउट करके आप खुद से उन पॉइंट को लिखो, जिससे कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। नाउ वी स्टार्ट द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, इस फाइलम के मेंबर्स जो होते हैं, इनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। ये आपको आसपास बड़ा इजीली देखने को मिल जाते हैं। आपको फ्रॉग देखने को मिल जाता है, आप फिश देख पाते हो, आप देख सकते हो स्नेक, लिजर्ड, मंकी, टाइगर, डॉग एटसेट्रा। और आप खुद भी बिलोंग करते हो, हम भी बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। द टर्म chordata, it is derived from the term chorda and eta. Chorda means a thick string and eta means to have, to bear. So chordata means ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। So animal having thick string like structure, that structure is actually what? Notochord. So notochord having animals are placed under the phylum Chordata. So the member of phylum Chordata, they are having very important feature, presence of what? Notochord. The very important feature, presence of notochord and hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits, post-anal tail. Post-anal tail, paired pharyngeal gill slit, hollow nerve cord and notochord. These are the very important feature of the phylum Chordata. These features are fundamental or basic chordate characters. Other basic features like bilaterally symmetrical animal होते हैं, ये आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। These are coelomate animals and organ system level of organization. Circulatory system is
closed type. Now here we are going to discuss fundamental chordate features. हम बात करने वाले हैं fundamental chordate features की. So it is a typical chordate animal. Typical chordate animal, and very first, notochord. So notochord, it is rod like structure. Rod कैसी होती है? Solid. So it is solid or rod like structure found on the dorsal side. This side is what? This is what? Dorsal side. Then this one is what? Ventral side. So notochord, it is a solid or rod like structure found on the dorsal side. You can say mid dorsal. क्यों? डोर्सल में भी कहां प्रेजेंट होती है? बीच में प्रेजेंट होती है, मिड पर. एंड its origin is mesodermal. It is what? Mesodermal in origin. Its function is to provide support. So its function is to provide support. This notochord modify into vertebral column and animals known as vertebrates. तो ये notochord जो होती है वो higher chordates में modify हो जाती है vertebral column में, but not in all chordate. कुछ में ये as notochord ही present रहती है, persistent करती है. Other one is nerve cord. Nerve cord is found on the dorsal side, and it is hollow, you can say tubular, and it is single. Nerve cord also found in non-chordates like Annelida, Arthropoda. वहां भी nerve cord present थी, but we remember nerve cord वहां पर कैसी थी? डबल वेंट्रल सॉलिड. यहां ठीक अपोजिट कर देंगे. डबल का सिंगल, वेंट्रल का डॉर्सल, सॉलिड का हॉलो. So in case of chordata, nerve cord is dorsal, hollow and single. The anterior part of this nerve cord, this part form brain, and the posterior part, form spinal cord. So nerve cord का एंटीरियर पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मॉडिफाई हो जाता है हायर कॉर्डेट्स में. हमारे में किस फॉर्म में मॉडिफाई हो चुका है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. नेक्स्ट फीचर इज गिल स्लिट. यू कैन से pharyngeal gill slit, as this is what? This is mouth. This is what? Pharynx. It is perforated, having pores or slits, apertures. These structures are called gill slit, pharyngeal gill slit. They help in respiration. They persist throughout the life in some chordates, but they disappear in terrestrial or land animals. जिन एनिमल्स को लैंड पर रहना है उनमें ये नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स प्रेजेंट होते हैं. सो गिल स्लिट, pharyngeal gill slit for respiration. This is what? This is anus.
एनएस के पीछे का पार्ट, दिस वन इज पोस्ट एनल पार्ट, यू कैन से पोस्ट एनल टेल. सो पोस्ट एनल टेल ऑल्सो प्रेजेंट. एनएस के पीछे से टेल अराइज हो सकती है. एनएस के पीछे से टेल अराइज होती है, आप मंकी में देखते हो तो वहां क्या प्रेजेंट है? पोस्ट एनल टेल. टेल may be present or may be absent, but if present then it is what? It is post anal tail. So fundamental chordate characters, one is what? Notochord, other one is nerve chord, next one is what? Pharyngeal gill slit and post anal tail. These are basic or fundamental chordate characters. These features are present in all chordates at any stage of life. लाइफ में किसी न किसी स्टेज में एक बार जरूर प्रेजेंट होते हैं. सभी chordates में, all chordates have these fundamental features in their life at any stage. क्या हमारे में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है? अभी है नोटोकॉर्ड क्या? नो, नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. क्या हमारे में अभी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है? नो, अभी नहीं है, बट ये प्रेजेंट थी. कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी. नाउ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. नर्व कॉर्ड मॉडिफाई हो गई. उसका इंटीरियर पार्ट उसने क्या बना दिया? ब्रेन. और इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या बना दिया? स्पाइनल कॉर्ड. तो अब नहीं है, पहले थी. कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर थी. फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या ये अभी प्रेजेंट हैं? नो, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर थे. अब नहीं है. हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट है. क्या पोस्ट एनल टेल अभी प्रेजेंट है? नो, इट मस्ट प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक life. Now we can compare chordata and non-chordata. In case of chordates, notochord is present at any stage of life. लाइफ में किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो कॉर्डेट है. इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है कहां? इन नॉन कॉर्डेट्स में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट में भी है, नॉन कॉर्डेट में भी है. नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डबल वेंट्रल सॉलिड. अपोजिट कर देंगे, डबल का सिंगल, वेंट्रल का डॉर्सल, सॉलिड का हॉलो और ट्यूबुलर. सो कॉर्डेट में जो नर्वस सिस्टम है, इट इज सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट. हार्ट इज वेंट्रल. हमारे में हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पर. हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट. अगर वो नॉन कॉर्डेट है, उसमें हार्ट हो भी सकता है, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, लाइक कॉकरोच. And other examples, you can say mollusk. Post anal tail present होती है, post anal tail absent होती है. You can take example like frog, there is octopus and many more examples. Now phylum chordata को हमने क्लासीफाई किया. phylum chordata को क्लासीफाई किया. One is group. First group is Acraniata. Acraniata or Protochordata. Proto means first, primitive. So these are primitive chordates. Or lower chordate, last developed chordates. Acraniata. A means absent और cranium means brain box. So brain box जो होता है वो इनमें एब्सेंट है. ग्रुप Acraniata इंक्लूड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. एंड द अदर ग्रुप इज Craniata और यूकॉर्डेटा और हायर कॉर्डेट.
craniata, cranium present होती है, euchordate, more developed chordate, higher chordates होते हैं. This group craniata include subphylum vertebrata. इसमें क्या आता है? subphylum vertebrata. It means in this group notochord is modified into vertebral column. That's why named vertebrata. And here in the group urochordata and cephalochordata, vertebral column absent, notochord present. तो मैं बोल रहा हूं, आप बताइए वो सेंटेंस सही होगा कि नहीं. मैंने बोला all chordates are vertebrates, right or wrong? All chordates are vertebrates. सभी chordates vertebrates होते हैं. सही बात है, गलत है? It is wrong. All chordates are not vertebrates. सारे के सारे chordates vertebrate नहीं हैं. Because urochordates and cephalochordates, they are not vertebrate. They are chordate, but they are not vertebrate. Okay. Other sentence. All vertebrates are chordates. All vertebrates are chordate. Right or wrong? Yes, it is right. Subphylum vertebrata हमने आगे लिया, हम उसको भी आगे क्लासिफाई करते हैं. Subphylum vertebrata को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट डिवीजन इज Agnatha. Agnatha. A means absent, gnathos means jaw. Jaw absent होता है, it means they are what? They are jawless. They are jawless. This Agnatha division include classes. Class 1 is ostracodermy and the other one is cyclostomata. Ostracodermy ये क्लास जो है इसके मेंबर्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इस क्लास को हमें आगे डिटेल में नहीं पढ़ना. वी विल डिस्कस द क्लास साइक्लोस्टोमेटा इन डिटेल लेटर. एंड subphylum vertebrata, it is having the other division is gnathostomata. Gnathos means jaw, stoma means mouth. So mouth में jaw present है. Here Agnatha jaw absent, jawless. उनमें क्या होगा? jaw present है. उसमें क्लासेस हैं. पहली सुपर क्लास है. क्लास से ऊपर वाला जो डिवीजन होगा, क्लास से बड़ा वाला जो डिवीजन होगा, ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर क्लास. First super class is Pisces. Pisces is divided into the class Placodermy, Chondrichthyes and Osteichthyes. Placodermy इस क्लास के मेंबर भी एक्सटिंक्ट, तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे. We will discuss Chondrichthyes and Osteichthyes later. One superclass is Pisces and other one is Tetrapoda. Tetra means four, podos means appendages, foot. So 4 foot animal कौन कौन से हैं? इनमें क्लासेस आएंगी Amphibia, then Reptilia, then Apes and Mammalia. So Amphibia, Reptilia, Apes, Mammalia, we will discuss these classes now. So this was the subphylum Vertebrata. Division Agnatha, jawless animal, Ostracodermy, Cyclostomata. We will discuss Cyclostomata later. Gnathostomata, jaw present, superclass Pisces, superclass Tetrapoda. सुपर क्लास को डिवाइड किया तो क्लास प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज. प्लैकोडर्मी एक्सटिंक्ट, इन दो को हमें पढ़ना है. टेट्रापोडा 4 पैर वाले, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया. ऑन द बेसिस ऑफ cranium, vertebral column and paired appendages, we classify phylum Chordata into two groups, Acraniata and Craniata.
Acraniata means they are not having cranium or brain box. These animals are primitive, last developed, hence called protochordates. On the other hand, in the group Craniata, brain box or cranium present. They are developed chordates. Now we compare group Acraniata and Craniata. Habitat, where they live. All protochordates are marine. They found in seawater. They are aquatic. It means water में है, and water may be sea water and also fresh water. So they found in sea water and also in fresh water. They may be terrestrial. Respiration takes place by gills, or you can say pharyngeal gills. Here gills are present and lungs are also present in terrestrial chordates. Notochord persistent, and in case of Craniata, notochord it is replaced by vertebral column. Vertebral column, hence called vertebrates. Paired appendages absent, unpaired appendages और fins present होते हैं but paired नहीं होते हैं. Means जैसे ये right ये left ऐसे pair नहीं होते हैं. Here paired appendages they are mostly present, and these animals are unisexual and maybe bisexual. Here mostly they are unisexual. Fertilization is external. Here external or internal, both type का fertilization. Development indirect means larval stage present है, and in case of Craniata it may be direct or may be indirect.